Good morning to everyone. Myself Ravi Kumar. I am your computer teacher. And dear students, in this class, especially for the junior students who are going to study in class 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. This class or this video is basically I prepared for those students who are going to start with the beginning. And today's topic is operating a computer. Many students doesn't know what are those steps that how to start the computer. Many students does not know that how to start the computer, and many students doesn't know what are the steps to start a particular program, what is the shortcut key to resize the window, to move the window, to scroll the window, to minimize the window. So let's start about this topic, operating a computer. Dear students, you all know very well about computer. Computer is an amazing machine. Computer is a electronic machine that can accept the input data, process it and desired the output results. That is called computer. Okay, point number 2. What are the parts of computer? There are 2 parts of computer: hardware, software. But what are the basic parts of computer? The basic parts of computer are 5 types: keyboard, mouse, monitor, CPU and speaker. The 5 basic parts of computer are keyboard, mouse, monitor, CPU and speaker. These 5 basic parts of computer. And parts of computer, 2 types: hardware and software. Okay, come to the question number 3rd. What are operating system? You know about Windows? Windows is an operating system software. Windows is an operating system software. But what is operating system? Operating system is a system software that makes the relationship between the user and the hardware. Steps to start a computer. सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के क्या पॉइंट्स हैं. इन दिस देयर आर 4 पॉइंट्स. फर्स्ट, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन. स्विच ऑन पावर सप्लाई बटन. आप अपने कंप्यूटर के पावर सप्लाई बटन को ऑन करें. सेकंड पॉइंट होगा स्विच ऑन यूपीएस पावर बटन. एम आई राइट? थर्ड पॉइंट, power supply button, it means main on the board. Second, switch on the UPS button. Third one is CPU power button. And last one, monitor.
इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर सप्लाई बटन जो है ये आपका वॉल में होता है, दीवार में, जो दीवार में दी गई है मेन सप्लाई, उसको पहले आप ऑन करेंगे। सेकंड में बोला गया है आपके यूपीएस पावर बटन। यूपीएस यू नो इन द लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक रिचार्जेबल बैटरी होता है। लाइट के कट जाने के बाद कुछ सीमित समय के लिए आपको ये बिजली की व्यवस्था करता है, तो उस टाइम पर ये उसको बोलते हैं यूपीएस। और पावर सप्लाई के बाद यूपीएस का बटन आप ऑन करेंगे, उसके बाद फिर आप सीपीयू का बटन ऑन करेंगे। यू नो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। एंड फोर्थ वन इज मॉनिटर पावर, मॉनिटर which can display the output results. So these 4 steps are to start a computer. Next point. After this, important term is desktop. Desktop, it is the first screen of the computer. It is the first screen of the computer. And what about icons? Icons are the small labeled pictures present on the desktop. डेस्कटॉप इट इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो सबसे पहला स्क्रीन होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और आइकन्स हो गया, आइकन्स आर द स्मॉल लेबल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर सबसे जो छोटी छोटी आपके स्मॉल पिक्चर दिख रही हैं, इसी को हम लोग आइकॉन्स कहते हैं। एम आई राइट? ओके, come to the next point. Next topic is about resizing the window resizing a window. You can change the size of window and look at the control buttons at the right cursor of the title bar. So in this we can take CTRL plus Alt plus Shift plus X means restore, और Alt plus Shift plus R means resize. ये आपके कंप्यूटर में 2 तरह के जो रिसाइजिंग विंडो टॉपिक दिया गया है, इसमें आपको ये रिस्टोर के लिए दे रहा है। रिस्टोर का मतलब होता है बेटा कि विंडो को हम कैसे रिस्टोर करेंगे, जैसे पहले था हमारा। तो अगर स्क्रीन को अगर बड़ा करना होगा तो हमको अपने कीबोर्ड में से, सभी बच्चे अपने कीबोर्ड में से फिंगर्स
एक फिंगर ऑल्ट पे, ALT ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट बटन पे, दूसरी उंगली शिफ्ट पे और तीसरी उंगली शिफ्ट पे, तो आपका रिस्टोर हो जाएगा। फिर एक उंगली, ये क्या है X, ऑल्ट शिफ्ट और X, तो ये हो जाएगा आपका रिस्टोर, ये हो जाएगा ऑल्ट शिफ्ट और R, तो इसका मतलब होता है रीसाइज। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसका प्रैक्टिकल करिए अपने घर में। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर रखे हैं तो ऑल्ट शिफ्ट और X से रिस्टोर होता है, ऑल्ट शिफ्ट और R से रीसाइज होगा। ठीक, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमको अपनी विंडो मूव करना होगा तो क्या करेंगे? मूव करने के लिए मूविंग ए विंडो, मूविंग ए विंडो, विंडो को मूव करने के लिए हो जाएगा आपके लिए ऑल्ट प्लस स्पेस बार और लेटर M, ऑल्ट स्पेस बार और लेटर M, इन तीनों की मदद से आपका विंडो मूव होने लगेगा। जब तीनों को प्रेस करेंगे, ये आपका विंडो है, तीनों को प्रेस करने के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा इस टाइप का सिंबल। अब आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है इस टाइप का सिंबल। अब जिधर प्रेस करेंगे उधर को ये विंडो शिफ्ट होता चला जाएगा। ऑल्ट स्पेस बार और M को जब तीनों को 3 उंगली से प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का एक सिंबल दिखाई देगा। उसके बाद कीबोर्ड में इस टाइप का एक एरो की दिया हुआ है, एरो की जिधर को प्रेस करेंगे ये विंडो स्क्रीन उधर को शिफ्ट होते हुए चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड मूविंग ए विंडो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। What are the steps to shut down the window? How to shut down a window? How to shut down a window? किसी भी विंडो को या कंप्यूटर को, हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर। आप यहां पे कंप्यूटर लिख लीजिए, आपकी विंडो उसी में आ जाएगी। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए सही प्रोसेस है कि फर्स्टली वी विल क्लोज द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस F4, एक उंगली से ऑल्ट दबाएंगे, एक उंगली से F4 दबाएंगे। तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट की। हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर, ये तो हो गया आपका शॉर्टकट की। पहले ऑल्ट प्लस F4 स्मार्ट बनने के लिए, एक उंगली से ऑल्ट और दूसरी उंगली से F4, तो आपको शट डाउन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको ओके कर देना है। लेकिन इसके लिए अगर प्रोसेस में जाएं तो प्रोसेस में क्या बोलेंगे? फर्स्टली गो क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस एंड देन प्रेस द स्टार्ट बटन। प्रेस द स्टार्ट बटन। सेकेंड, क्लिक on shut down button. Click on shut down button and it will take some time to stop the computer properly, to shut down the computer properly. I think you like this video very much.
If you have any type of doubt, you will contact me. Now it's homework time. Homework. Question number first. Write 10 input devices name. Question 2. Define the CPU. Third, draw the diagram of CPU and color it. So, dear students, write 10 names of input devices. 10 इनपुट डिवाइसेस के नेम्स आपको लिखने हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, इस टाइप्स के आपको नेम्स लिखने होंगे। दूसरा है डिफाइन द सीपीयू, सीपीयू के बारे में लिखेंगे आप। तीसरा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीपीयू, सीपीयू का डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।